At the very outset, very good afternoon, namaskar to each and all. Adarniya Principal Ramesh sir, IQAC in charge, respected Kumar Prashant sir, most respected Dr. Manish sir, dear students, Shubhi, Shubham, अजय और प्रीति, जिन सबको मैं यहाँ देख सकती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच शक्ष एंड IQAC श्यामलाल कॉलेज इवनिंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर इनवाइटिंग मी. आज जो विषय जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं आपके के साथ, इट इज अ the issue is important. Number one, because it is of contemporary times, and secondly, it is an interdisciplinary issue. चाहे मैं बात पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से करूंगी, लेकिन वो इतिहास के पन्नों से वो जुड़ा विषय है. जब हम इंडस्ट्री 4.0 को नहीं समझ सकते जब तक हम, especially when unless and until we look at the modern contemporary world history. I'll just take one moment to begin my PPT, and I just want to know from you all if just 1 minute, students. I'm just putting my PPT ताकि हमारी बातचीत जो है, can you hear see the PPT from my other handset, क्योंकि मैंने लैपटॉप से PPT को ऑन कर रखा है. Can you Yes, see that? ma'am. Okay, all right. तो करते हैं शुरुआत. Yes. स्टूडेंट्स, आज जिस विषय के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, that is इंडस्ट्री 4.0 एंड यूथ. और ये मैं इसलिए इस टॉपिक को मैंने सिचुएट करा, एज यू नो डॉक्टर कुमार प्रशांत सर वाज टॉकिंग कि हमें इस क्रांति के लिए अपने आप को तैयार करना है. कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जब आदरणीय रमेश सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि प्रिंसिपल साहब ने बिल्कुल किस प्रकार से गांधीवादी दृष्टिकोण हमें प्रदान किया. और देखिए, कुछ संजोग की बात है, व्हाट इज कोइंसिडेंस, कि मेरी भी पहली पीपीटी इट बिगिंस विद द पर्सपेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी जी. Dear students, why I really begin with this quote, that is, learn as if you were to live forever. क्योंकि यही मंत्रा होने वाला है इस नई औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत अपने आप को ढालने का और इस नई औद्योगिक क्रांति से बेहतरीन लाभ प्राप्त करने का. The very idea that you have to be a consistent learner will be one of the important guiding pillars to ride through the fourth industrial revolution. Principal sir actually rightly pointed out that Mahatma Gandhi ji was not against technology per se. जब भी हम किसी विचारक को पढ़ते हैं तो पृष्ठभूमि को हमें समझना होता है. He was against how the very idea of technology working on capitalist model of profit sharing, profit making, it displaces the individual. और यही आज के संदर्भ में हमें समझना है that हमें इस नई औद्योगिक क्रांति को आज की पृष्ठभूमि के संदर्भ में समझना है. As Mahatma Gandhi ji also said that true education must correspond to the surrounding circumstances or it is not a healthy growth. जो बस हमने पहले छोड़ दी है उसको हमें वो वाली गलतियों को नहीं दोहराना है. As you know, Sanatyana, the great philosopher, because मैंने BA प्रोग्राम किया था तो I did English, philosophy, economics and political science, so I'll try my best to dwell on learning from other whatever this, other disciplines that I have. Sanatyana की कथन था that those who ignore the mistakes of the past are condemned to repeat it. The mistakes that we did with respect to earlier forms of industrial revolution, we must not do in the present phase of industrial revolution. To begin with, very beautifully, Shubhi summed up the views of Klaus Schwab, the founder, director, and the chairman of the World Economic Forum. That is the important think tank leading the very idea of Industry 4.0. जब भी हम रिसर्च करते हैं तो तथ्य को उनके सोर्सेस के साथ जरूर प्रस्तुत करेंगे. For the simplicity, for the learning of our students, I'd like to share this definition that I got from Britannica.com, that industrial revolution, सबसे पहले हम जानते हैं औद्योगिक क्रांति है क्या. क्योंकि आप सब लोग इतिहास के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सब यहाँ पर मैं अगर मैं टाइम लाइन फ्रेमवर्क से समझाऊंगी तो टीरियोलॉजी में मैं इसको मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको मैं अंतरराष्ट्रीय संबंध में कंटेम्पररी वर्ल्ड हिस्ट्री का शीर्षक देते हैं. आई ट्राई टू सिचुएट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू मॉडर्न हिस्ट्री. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज. और बदलाव क्या था कि
फ्यूडलिज्म की समाप्ति के बाद इंडस्ट्रियल मॉडल में एक बदलाव आया। इंडस्ट्री की ओर प्रोत्साहन हुआ, कैपिटलिज्म की ओर प्रोत्साहन हुआ, मशीन एज की ओर प्रोत्साहन हुआ। और यहाँ पर हम देखेंगे टाइम फ्रेम है लगभग 18 टू 19 सेंचुरी, और मैं इसको एक यूरोपियन फिनोमेना के रूप में देखती हूँ। To say that other forms of economic models were not fine, it will be wrong, because we also have to understand that economy in itself is a very diverse aspect. अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, but somewhere when we try to understand contemporary world history, especially the Western European history, industrial revolution played a very important role as a phenomena coming after the downfall of feudalism, as a phenomena responsible for rise of colonialism and imperialism, and as a phenomena responsible for rise of the present day format of capitalism. तो सामंतवाद, पूंजीवाद और उपनिवेशवाद के अंतर्गत, इन तीनों फिनोमेना के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति की एक अहम भूमिका रही। अब हमें ये समझना है, जैसे क्योंकि आप सब लोग इतिहास के छात्र हैं, हम सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप ये हमें बता सकते हैं दैट एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो एक कथन होती है ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो वही कथन आज फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे भी लागू होती है, दैट वी हैव नॉट कम टू दिस फेज ऑफ इंडस्ट्री 4.0 ऑल ऑफ अ सडन। समय के साथ मानव ने बदलती हुई गतिशीलता को, देखिए जो डायनामिज्म है उसके अंदर भी डिसरप्शन है, उसमें देखते हुए दे ट्राई टू human civilization try to present new answers. This is why we see that first industrial revolution was worked on the basis of mechanization. हमने देखा किस प्रकार से water और steam power was used to mechanize production, and somewhere we see that how with this rise of new forms of innovation at the backdrop of Renaissance, Reformation, rise of scientific thinking, work of Galileo, Descartes, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक मॉडल पे भी प्रभाव पड़ा, और वो प्रभाव क्या था? दैट वी फाइंड the first industrial revolution that was based on mechanization and somewhere time framework, as you can see, rise of steam power, rise of hydropower, to and the main aim of the scientific discovery that time was to add more to mass enterprises, क्योंकि यूरोप में उस समय बड़ी बड़ी उद्योग आ रहा था, तो उस उद्योग को ज्यादा बेहतर तरीके से ऊर्जा कैसे दी जाए, मैकेनाइजेशन वाज द आंसर। The second phase of industrial revolution comes from the seed of the first industrial revolution. 1870s we see that how technological advancements, and once again यहाँ पे इंडस्ट्री में क्या एडवांसमेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, स्टील, कम्युनिकेशन, rise of telegraph, rise of telephone। यदि मैं उदाहरण के रूप में बताऊं कि इसी समय के आसपास भारत में भी बंबई टू से थाने तक पहली रेल यात्रा, पहली रेल का की शुरुआत हुई। तो व्हाट वी सी हियर इज दैट इलेक्ट्रिक पावर टू क्रिएट मास प्रोडक्शन, बिकॉज उद्योग का, अगर हम अर्थव्यवस्था से समझे, उद्योग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है टू ऑल द रिस्पेक्टिव मेंबर्स इन द डिजिनार, दैट इंडस्ट्री इज अ डायनामिक फिनोमेना, वो स्थिर नहीं होता है। इंडस्ट्री इज अ डायनामिक फिनोमेना, and looking at the way production was increasing, the mechanism to lead the revolution was also changing. Earlier it was only water, steam, but अब हम देखते हैं 18th century and early 19th century में that electricity, gas, telegraph, communication were leading the mechanisms of the second industrial revolution. थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम इज वन थिंग विच इज नेवर कांस्टेंट, और यही हम देखते हैं दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच हैपेंस, इफ यू ड्रॉ कंपैरेटिव एनालिसिस between first world war and second world war, first world war, dear students, once again आप इतिहास के छात्र, मैं इस पर जरूर बल दूंगी क्योंकि एज अ टीचर मुझे भी आपसे कुछ जरूर जानने और सीखने को मिले। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर was primarily a European phenomena. At that time America was isolated. At that time we witnessed that how the idea that it was only between the European powers, and how colonialism and imperialism were important causes.
Second World War, on the contrary, as a political scientist, one sees that it was a war on a major scale. For the first time, one witnesses the use of atom bomb on Hiroshima and Nagasaki by United States. And at the same time, there is a huge change that you cannot understand international relations by just mere reliance on ideas. केवल विचार और नैतिक मूल्य के आधार पर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध को नहीं समझ सकते। आपको एक नए यथार्थ की ओर आगे बढ़ना होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं that again the idea of international relations comes towards the realist tenor. And herein what we see that after the Second World War with the Cold War leading the world, and again it was not an actual war, शीत युद्ध में कभी भी सोवियत यूनियन व यूएस कभी भी आमने सामने नहीं आए। यदि हम कोई से भी इतिहासकार के काम को देखें तो किसी भी डायरेक्ट वॉर का उल्लेख नहीं है, लेकिन इट वाज अ आइडियोलॉजिकल वॉर, अ प्रोपेगेंडा वॉर to decide that which ideology, that is capitalism versus communism, was more important. Now, herein it is very important to understand that the third industrial revolution was a very important battlefield for the Cold War. क्योंकि यदि एक तरफ से हम देखते हैं कि अमेरिका चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट को भेजता है, तो दूसरी तरफ यूएसएसआर भी स्पुतनिक को आगे बढ़ाता है। So what we see the third industrial revolution also, where in the medium, earlier it was water and steam. Now then it was electricity, gas and steel. And now it is electronics, telecommunication, biotechnology, internet, nuclear energy. And here what we see that the focus is on automation of production. यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक डिफरेंशिएशन करना होगा कि तीसरी औद्योगिक क्रांति में हम मैकेनाइजेशन की ओर नहीं बल्कि ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं। ऑटोमेशन का मतलब कि चीज एक अपने अंतर्गत आगे बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल द आइडिया ऑफ ऑटोमेशन दैट हाउ अर्लियर द आइडिया ऑफ कम्युनिकेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर वाज बहुत मुश्किल, लेकिन समय के साथ देयर वाज राइज ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो हियर इन व्हाट वी सी, अब हम इस स्तर पे हैं। आपने सुना आदरणीय डॉक्टर कुमार प्रशांत सर हमें बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, आज हम अखबार खोलते हैं, टेलीविजन को देखते हैं, या कोई ग्लोबल समिट को देखते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोनोमस व्हीकल, 3D प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस, एनर्जी स्टोरेज, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब नाम कहीं ना कहीं हम सब के अंतर्गत हम सुनते हैं। वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम्स एंड द न्यू टर्मिनोलॉजी ऑफ एआई, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एंड स्टूडेंट्स नॉट गोइंग वेरी फार ऑफ, दूर नहीं जाएंगे आप। यदि आज आप इंटरनेट पे जब आप गूगल क्रोम पर जाते हैं अपने स्मार्टफोन के जरिए, आप कुछ या लैपटॉप के जरिए आप कुछ गूगल करते हैं, तुरंत कुछ 2-3 दिन बाद आपको या उसी कुछ समय बाद आपको उसी से जुड़े हुए न्यूज अपडेट्स आ जाते हैं। सो हियर इन व्हाट वी सी दैट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जैसे प्रकार से शुभी ने हमारे बीच क्लॉस स्क्वाड की परिभाषा प्रस्तुत कर दी, मैं उन्हीं के विचार प्रस्तुत कर रही हूँ इस समय। चौथी औद्योगिक क्रांति जिसमें हमें जीना है और अभी हम जीने वाले हैं, fourth industrial revolution, it represents a fundamental change in the way we live and in the way we relate to each other. इस पे हम थोड़ा सा बल देंगे। It will be a new chapter in human development enabled by extraordinary technological advances. थोड़ा सा जिसे कहते हैं डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। इंटरपोलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन या किसी भी सोशल साइंस में डीकंस्ट्रक्शन एक इंपॉर्टेंट अप्रोच होती है। ये किसी भी टर्म को समझने के लिए हम उसको स्टेप बाय स्टेप उसका मूल्यांकन करते हैं। यदि मैं इस परिभाषा को डीकंस्ट्रक्ट करूं दैट इट विल बी अबाउट अ एब्सोल्यूट चेंज इन द वे वी लिव। हम सुबह उठते हैं, एन एग्जाम्पल, अब फोन आस्क अस इमीडिएटली कि आप इसको क्विकली ये वाले एप्स को री डाउनलोड करिए। योर फोन वांट्स टू बी रीबूटेड। इन हाउ वी रिलेट टू वन अदर, पहले जब भी कोई त्योहार या पर्व होता था हम एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे। टुडे द आइडिया ऑफ ग्रीटिंग एंड कम्युनिकेशन हैज बीन जस्ट रिड्यूस कि हमने एक व्हाट्सएप पर सुप्रभात, नमस्कार और शुभकामनाएं भेज दिया और वहीं कहीं ना कहीं
हमारा जो सोशल कनेक्ट है अपने परिवार से, अपने गुरुजन से, अपने यूनिवर्सिटी से, अपने सामाजिक साथियों से, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया है। और ये जो न्यू चैप्टर है, इट इज इनेबल्ड बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी एडवांसेस। जैसे एक उदाहरण देंगे, पैंडेमिक विश्व के इतिहास में, वंस अगेन मैं ये बात पे जरूर बल दूंगी, आप लोग इतिहास के स्टूडेंट तो आप इस बात में बताएंगे, पहले भी विभिन्न प्रकार के पैंडेमिक आए, लेकिन अभी का पैंडेमिक क्या है, जिस प्रकार से डॉक्टर कुमार प्रशांत सर भी बिल्कुल उचित रूप से बता रहे थे कि वेरिएंट पे वेरिएंट, वेरिएंट के साथ साथ दवाइयों के ऊपर, पेटेंट के ऊपर लड़ाई। और इस पे मैंने काफी लिखा भी है कि डब्ल्यूटीओ को पेंडेमिक के अंतर्गत पेटेंट्स को हटा देना चाहिए, कि ताकि दवाइयों का जो लाभ है, जो बहुत बड़ा विश्व का एक संख्या है, अफ्रो एशियन कंट्रीज, अफ्रीका के बहुत सारे अन्य देश, उन तक पहुंच पाए। सो यस, दिस इज अ न्यू चैप्टर वेर इन वी आर we are about to see development enabled by extraordinary technological advances। और यहाँ पर हम कोई ग्रीक या यूनान की बात नहीं करें, दिस इज समथिंग वी ऑल लिव विद। हम और अगेन, जब हम बात कर रहे हैं इस चौथी औद्योगिक क्रांति में इंटीग्रेशन की, इट इज वेरी एसेंशियल दैट वी आर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड। ये कहना कि अब हम इसमें नहीं होंगे, वो गलत होगा, बेईमानी होगी। अगर हम ईमानदारी की बात देखें, वी आर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपना व्हाट्सएप डाउन या कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हैं, तुरंत आपसे पूछा जाता है, आर यू रेडी टू शेयर योर कॉन्टैक्ट्स? हम कहते हैं जी, बिल्कुल हम तैयार हैं। तो यहाँ पर वी आर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड। जब हम कोई सा भी वॉलेट डाउनलोड करते हैं, गूगल पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, समवेयर यू हैव ऑलरेडी अग्रीड टू शेयर योर मेजॉरिटी ऑफ योर component of your information with the user। देन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब ये अन्य क्रांति से इतना अंतर क्यों है? बिकॉज अर्लियर इंटरनेट रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंटरनेट नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें जानना है। और यही आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण दिस इज इवॉल्विंग एज अ एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल होता है एकदम तीव्र गति से, रादर देन एट अ लीनियर फेज। पिछली औद्योगिक क्रांति स्टूडेंट्स, पहली, दूसरी व तीसरी, तीनों एक लीनियर फेज से चलते थे। यदि हम थोड़ा क्वांटम फिजिक्स से समझें कि वो एक ग्राफ के रूप में जाता था। लेकिन आज की जो औद्योगिक क्रांति है, एकदम एक्सपोनेंशियल, आउट ऑफ द बॉक्स कर्व के रूप में आगे बढ़ रही है। एंड बात यह है कि जिस प्रकार से ये आगे बढ़ी है, डेली इट इज प्रेजेंटिंग टू अस न्यू क्वेश्चंस टू रिफ्लेक्ट ऑन। देन थोड़ा सा, क्योंकि दिस इज द एरिया विच आई लिव एंड रियली वर्क ऑन ईच डे, ग्लोबलाइजेशन। देखिए, औद्योगिक क्रांति से ही जुड़ा है एवोल्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान we had the idea of globalization, that is a trade and interconnections between people on a very simplistic basis। trade was a very simple matter कि इस कंट्री ने ये इसको दिया, दूसरी कंट्री ने वो एक्सपोर्ट व इंपोर्ट करा। with second industrial revolution, this phase of globalization increased। with the third industrial revolution, globalization was in the phase of globalization 3.0। 3.0 का अर्थ था that after the end of the Cold War, wherein now world was no longer bipolar, विश्व अब बहुपोलर, बहुआयामीय हो गया था, multipolar world। उसके अंतर्गत we have the new liberal model of globalization connecting people, goods and services। This of globalization was not only about trade, but also about interchange of ideas, of cultures, of norms, of values। And this globalization, I have to say that this is something which was heavily critiqued, क्योंकि इसमें no doubt लाभ तो हुए, नई नौकरियां आई, नए तरीके आए, नए स्टैंडर्ड्स आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लाभ केवल कुछ लोगों तक सीमित थे। The very idea that globalization worked in a very elitist format, wherein its gains were disconnected from the grassroots, was heavily criticized by the populist forces। और इसमें अगर आप पढ़ना चाहें, मैंने इसमें लिखा भी है, lot of done lot of work on the then US President Donald Trump's perspective with respect to opposing global governance। कि कहीं ना कहीं the agenda is so biased कि जो राज्य, एक प्रत्येक राज्य की जनसंख्या होती है, वो बहुत भारी कीमत उठाती है इस वैश्वीकरण में अपने आप को समाने की। टुडे अगर मैं 2019, अगर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, at the 2019
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबलाइजेशन 4.0 वाज द थीम। देखिए, नो डाउट वी ऑल नो दैट ग्लोबलाइजेशन इज कंटेस्टेड, इसमें बहुत सारे नुकसान हैं, बट एट द सेम टाइम अब हम गाड़ी को पीछे नहीं मोड़ सकते। लिविंग इन आइसोलेशन ऑल्सो इज नो लॉन्गर अ वाइज ऑप्शन। Why? Because today we are there in a world wherein we are connected. पैंडेमिक में भी वायरस ने सारी चीजों को रोक दिया। हमने पहला लॉकडाउन जब लगा, हमने चिड़ियों के गान देखे, हमने पर्यावरण का एकदम बेहतर होते हुए देखा। हमने देखा कि क्या गांव के प्रति जीवन ही सबसे बेहतरीन है, या जिसके बारे में मैंने लिखा था अखबार में कि क्या सरल जीवन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बट एट द सेम टाइम ये आदर्श से बाहर आते हुए जब हम देखते हैं, so today, irrespective of the big question marks on globalization, it is a process that is in play। और आज ग्लोबलाइजेशन ने इंडस्ट्री 4.0 के साथ अपना रूप बदल लिया है। टुडे देयर इज अ चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दैट इज ग्लोबलाइजेशन 4.0। तो अब आता है मेरे हम सबकी वार्ता का दूसरा प्रमुख मुद्दा, अब इसके लिए तैयारी कैसे करें, या हाउ डज इट इम्पैक्ट। First of all, we have to see that its most important impact will be on the employment situation. And dear students, यहाँ employment situation में आपको समझना है that is with respect to future skills required for the jobs। और यहीं से अब हम will relate to our first slide of our Diginar। किस प्रकार से हमने महात्मा गांधी जी के आदर्श को एक बार समझा था, that learn as if you were to live forever। At a time when the technology that is guiding our lives, at a time when an industrial model which is highly connected, but at the same time an industrial model that is highly disruptive also। उसने हमें जोड़ा तो है, शुभी को आमना से मिलवाया है, शुभम को हमसे बात करवाई है, डॉक्टर मनीष और हम सब लोग सब साथ हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स डिस्ट्रप्टिव ऑल्सो। कब ये स्थिरता एकदम अस्थिर हो जाए हमें नहीं पता। So the future skills that are required for jobs requires constant reskilling। आपको निरंतर रूप से अपने आप को रीस्किल करना पड़ेगा। हमें ये मानना पड़ेगा that time has changed and yes, ये जो बदलता हुआ समय है, थोड़ा सा आदर्शवादी यदि हम बात करें, हमने कहीं ना कहीं इस बदलते हुए समय के लिए बहुत बड़ी कीमत लगाई है। एग्जाम्पल, आज हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, इट इज अ फैक्ट ऑफ अवर लाइफ। सर्दियां होती हैं तो बिल्कुल कम होती हैं और बहुत ही तीव्र होती हैं, गर्मियां होती हैं तो एकदम लंबी होती हैं और बिल्कुल जिसे कहते हैं पता नहीं, वेगरीज ऑफ नेचर। सो टाइम हैज चेंज, but at the same time, with this technology, with this changes of time, we cannot turn our back। मुड़ना अब एक सही ऑप्शन नहीं होगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आज हमें मानना पड़ेगा दैट दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये अब हमारे जीवन की एक अहम कड़ी है। एंड एक अहम कड़ी का उदाहरण हम देते हैं कि अब हम मेटावर्स की ओर जा रहे हैं। इसके बारे में भी हमने अभी लिखा है अखबार में परसों कि मेटावर्स ने अब इंटरनेट को हमारे अंदर कर दिया है। पहले हम इंटरनेट के साथ थे, लेकिन अब हमारे पास एक पोटेंशियल दिख रहा है जहां हम साथ हो सकते हैं। क्योंकि आप सब लोग आज के जमाने, आज के समय के युवा छात्र हैं, थोड़ा सा गूगल जरूर करिएगा। तमिलनाडु में एक व्यक्ति कपल ने मेटावर्स का उपयोग करके विवाह रचाई करी, और हैरी पॉटर के पूरे उसमें थीम में। क्योंकि जब आप मेटावर्स के अंतर्गत पूरा होते हैं, एक ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी, आप अपने आप को एक रोबोट से बात करते हुए देखते हैं। देन रिलेटेड टू इट, important film stars, they are buying and selling land on metaverse। so सवाल ये है that yes, we are moving towards a new phase, we are moving towards a non human interface। क्योंकि पहले जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, वहां व्यक्ति ने व्यक्ति से वार्ता किया, वहां व्यक्ति ने इंटरनेट के ऊपर अपना अपना जिसे बोलते हैं वर्चस्व जमाया। लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। टुडे द थिंग्स आर लुकिंग डिफरेंट, दैट इज नाउ ह्यूमंस may be interacting with non-humans। now internet may just overpower us, and in this situation यहाँ पर मैं जरूर बात कहूंगी। देखिए, जब कंप्यूटर आया, एंड आई थिंक आदरणीय प्रिंसिपल साहब ने भी इस बात का बहुत अच्छा उल्लेख करा, जब कंप्यूटर आया बहुत बड़ा सवाल था कि क्या ये कंप्यूटर अब नौकरियां समाप्त कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंप्यूटर के उदय से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नई नौकरियां निकली, कंप्यूटर के उदय से कंप्यूटर साइंस एज अ डिसिप्लिन आगे बढ़ा।
तो ऐसा नहीं है। When jobs are being replaced by automation, जॉब लॉस को मैं जरूर मैं बोलूंगी कि इट्स कहना कि केवल इससे सब समाप्त हो जाएगा, ये एग्जैजरेटेड होगा, क्योंकि वन ऑलवेज हैज टू पुट फेथ ऑन रैशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो मशीन में नहीं है, जो इंटरनेट में नहीं है, ऑन रैशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू लीड द प्रोसेस. So herein, yes, the biggest challenge would be jobs being replaced by automation. लेकिन फिर भी ये मैं अपना मेरा मानना है, जितना मैं पढ़ रही हूँ इस विषय के ऊपर, it somewhere may be exaggerated because one should always acknowledge the significance of human mind. Now, अब जैसे अब हम शिफ्ट कर गए टुवर्ड्स द डिजिटल वर्ल्ड, जो कि आज हमने देखा ही है, ऑनलाइन क्लासेस से लेकर ऑनलाइन पेमेंट्स, ऑनलाइन एप्स, शॉपिंग एप्स, विभिन्न प्रकार के, आज एजुकेशन 4.0 की चर्चा हो रही है, विभिन्न अन्य डिबेट्स चल रही हैं. सो इन दिस शिफ्ट टुवर्ड्स द डिजिटल वर्ल्ड, वी हैव टू एक्नॉलेज दैट कंपटीशन चाहे हम सार्वजनिक क्षेत्र में हो या हम निजी क्षेत्र में, कंपटीशन इन मार्केट will be an important challenge जिसे हम सबको सामान्य रूप से फेस करना है. क्योंकि सप्लाई साइड पर अब हमें देखना है कि मोर इनपुट्स, फॉर एग्जांपल यदि आज आपको सीखना है वोकेशनल का कोई सा कोर्स, जैसे मैं काफी कहती हूँ, क्योंकि मैंने काफी बात करती हूँ कि हर कला अपने अंदर कहीं ना कहीं बेहतरीन होती है. तो जैसे बहुत सारी, क्योंकि मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाती हूँ, बहुत सारी गर्ल्स मुझे कुकिंग के बारे में बात करती हैं. तो आई ऑलवेज टेल देम दैट कुकिंग इज एन आर्ट. आप अच्छे कुक यदि हैं तो आप शेफ बन सकते हैं. तो नो डाउट, आप यदि एक अच्छे शेफ बनना चाहें तो आप इंटरनेट का उपयोग करके बहुत सारा काम कर सकते हैं. आप सब लोग स्टूडेंट्स आजकल ब्लॉगिंग करते हैं, आप सब लोग स्टूडेंट्स आजकल इंस्टा रील्स पर हैं. तो इनपुट्स तो आप ज्यादा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इनपुट्स के साथ प्रदान कर, मोर इनपुट्स के साथ सप्लाई साइड पर फिर युवा के सामने बहुत बड़ा सवाल होगा कॉस्ट बैलेंस का. How, what is that Shubhi would like to offer that is better with respect to what Shubham would like to offer? What is that a student say Nikita would offer that would be better than what Ajay would offer? तो हमें इस सब में अपने आप को इस बदलती हुई परिस्थिति में अब हमें समझना है that competition is the new norm. More inputs will be there, cost balance would be required, and do remember the better story will get the better taker. यदि आपके कंटेंट में, यदि आपके विचार में ज्यादा आधुनिकता है, यू आर द क्रिएटर. आप उसको आगे लेकर जाएंगे, आप उसको आगे लेकर जाएंगे. और ये मैं जैसे यदि हम जैसे हम स्टूडेंट में बात करती हूँ कभी कभार, रमेश सर, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान बताऊंगी कि जब मैंने कॉलेज टीचिंग शुरुआत करी तो मुझसे काफी लोग कहते थे आप कैंपस पे पढ़े हैं और नॉन कैंपस कॉलेज पर आ गए. तो यहाँ हमें एज टीचर, अब तो हम खैर बिल्कुल आउटसाइड कैंपस पे हैं, पंजाबी बाग पे गर्ल्स कॉलेज में, तो ये मेरी काफी डिबेट रहती है कि कैंपस, और अखबारों में मैं इसमें बड़ा हमने लड़ाई भी करी है कि ये जो कैंपस कॉलेज और नॉन कैंपस कॉलेज, मॉर्निंग और इवनिंग कॉलेज का जो विभाजन है बिल्कुल गलत है. क्योंकि आज के समय में केवल एक पैरामीटर है जो स्टूडेंट्स को जज कर सकता है, वो है कंसिस्टेंसी है उनके पास, एंड दूसरा डिसिप्लिन है. और डिसिप्लिन का यहाँ पर अर्थ है कि बदलते हुए दुनिया में अपने आप को समा देना, और ये जो समावेन आपको करना है ये निरंतर होना है. सो वंस अगेन यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट चैलेंज अप्लाइज टू ऑल. ये कहना कि इंडस्ट्री 4.0 केवल कंप्यूटर साइंस को या फिर एमएनसी वर्ल्ड को इम्पैक्ट करेगा, ये गलत है. ये चुनौती हम सब के सामने है. इट इज नॉट नीडेड फॉर एनी वन डिसिप्लिन. दैट इज, आज आप इतिहास के स्टूडेंट्स हैं और आप सब लोग जर्नल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ चेंज में मैंने देखा बहुत ही बेहतरीन शख्सियत ने काम किया. तो अब औद्योगिक क्रांति आप पर कैसे लागू होती है कि आपको भी अपनी जर्नल को विभिन्न प्लेजरिज्म से, इम्पैक्ट फैक्टर से लोकेट करना है कि आपका जर्नल एक सेटिंग में स्टैंड आउट करे. आपका जर्नल प्रत्येक महीने वो विचार दर्शाए जो लोगों तक और बेहतरीन रूप से जाए. आपका जर्नल डिजिटल रूप में हो या नॉन डिजिटल फॉर्मेट में हो, दैट इट रियली स्ट्राइक्स अक्रॉस. So the challenge of disruption in industry 4.0 applies to all. केवल एक डिसिप्लिन पर एप्लीकेबल नहीं है. एग्जाम्पल, जब हम इतिहास को देख रहे हैं, आज इतिहास की डेट्स को लेकर काफी चर्चा होती है, because today even archives has become under the digital format. So what is essential is reskilling.
ये निरंतर रूप से हमें प्रत्येक दिन नया सीखना है, प्रत्येक दिन से अपना जो स्किल है उसको बढ़ाते जाना है। दिस इज वेरी मच नीडेड टुडे। नो डाउट देयर इज अ नीड ऑफ न्यू एथिक्स। देखिए, एज वी सेड कि जो पुरानी गलतियां हुई, जैसे पहले औद्योगिक क्रांति, वो कहीं ना कहीं उसके लाभ कुछ लोगों तक सीमित थे। दूसरी औद्योगिक क्रांति, तीसरी औद्योगिक क्रांति में भी यही था। लेकिन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मैं यहां जरूर दर्शाऊंगी, जो एडवांटेज है ओवर अर्लियर मॉडल ऑफ कैपिटलिज्म इज दिस, दैट लार्जेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ इनोवेशंस tend to be providers of intellectual capital, knowledge economy। प्रयास जारी रखिए कि यह जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है आपके पास, ये जो सोचने की क्षमता है, नई चीज को प्रस्तुत करने की क्षमता है, वो चीज ना खराब हो। बिकॉज डू रिमेंबर, टुडे द फोकस has changed. Individual has to be a job creator, not just a job seeker। और ये मेरे ऊपर भी लागू होता है कि जब मैं कॉलेज जाऊं तो मैं इस प्रकार से काम करूं that I should be creating my job। Somewhere we have to work towards this new ethic, and one of the advantages of the present industrial revolution is this democratization aspect, कि आज आपके पास एक फोरम तो है जहां पर आपकी अर्लियर इन्वेस्टमेंट जो है, जो पहले इन्वेस्टमेंट जो है, पहले इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ है, थोड़ा सा उससे हटकर व्यक्ति अपना काम जो है वो स्थापित कर सकता है। बट यस, जैसे अर्लियर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में था, वो इस रेवोल्यूशन में भी है द नॉन ह्यूमन एस्पेक्ट। जैसे अर्लियर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक जो था तीनों औद्योगिक क्रांति में, कि प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा बल था, जिसके कारण वैश्वीकरण को भी बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं हम लोग। आज के में प्रॉफिट से ज्यादा इस नई औद्योगिक क्रांति की अस्थिरता के ऊपर बहुत सवाल है, कि एज ऑफ डिसरप्शन। चीन का यदि मैं उदाहरण दूं, वहां पे रोबोट्स के जरिए कहीं ना कहीं बहुत सारे इलाज चलते हैं। आज बहुत सारी सर्जरीज जो हैं वो रोबोटिक्स के द्वारा हो रही हैं। आज कहा जा रहा है कि किस प्रकार से नॉन ह्यूमन एजेंसीज चीजों को बदलाव कर देंगी। तो जो अस्थिरता है, एज ऑफ डिसरप्शन, इस पर हमें बहुत ध्यान देना होगा। लेकिन आई वुड ऑलवेज से दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव द रैशनैलिटी, ह्यूमन बीइंग्स हैव द प्रैग्मेटिज्म टू ओवरकम दिस डिसरप्शन। अपनी बातों को समाप्त करते हुए मैं आप लोग के बीच एक मंत्र, जो कि मैं मुझे रिपोर्ट बहुत सुंदर लगती है, और इस रिपोर्ट को दोबारा निरंतर रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज हम युवा को संबोधित कर रहे हैं, आज हम युवा साथियों को संबोधित कर रहे हैं। और युवा साथी को मैं मानती हूँ कि जो निरंतर पढ़ते हैं, और इसी कारण मैं टीचर्स को भी कहूंगी, क्योंकि हम सब टीचर्स भी निरंतर पढ़ते हैं, तो हम भी युवा स्टूडेंट ही हैं। डेलोर्स रिपोर्ट आई थी, बहुत सुंदर रिपोर्ट है, और सुंदर मैं इसलिए कहती हूँ उसमें विचार बहुत सुंदर है, डिलोर्स कमीशन द्वारा। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग यूपीएससी लिखते हैं, कि जैक्स डिलोर्स कौन थे? वो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूरोपियन कमीशन के, और फॉर्मर फ्रेंच के प्राइम मंत्री थे इकोनॉमी और फाइनेंस को लेकर। उन्होंने वही बात दोहराई है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कह चुके हैं, दैट इज वी नीड अ इंटीग्रेटेड विजन ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन टू की कॉन्सेप्ट्स। आज अगर मैं 1996 की रिपोर्ट को चौथी औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में बताऊं, तो आज हमें यही जरूरत है, नई प्रकार की शिक्षा, नया प्रकार का यथार्थ, जो दो चीजों को साथ जोड़े। पहला, लर्निंग थ्रू आउट लाइफ। अब हमें जीवन में सीखना एक निरंतर प्रयास है, एक निरंतर प्रक्रिया है, जिससे हमें अब मन नहीं चुराना, हमें इसमें अपने आप को समाना पड़ेगा। एंड फोर पिलर्स, दैट इज फोर पिलर्स ऑफ लर्निंग क्या है? टू नो, जानिए। आप घर में बड़े बुजुर्ग को देख रहे हैं, उनसे जानिए कि किस प्रकार से क्या उद्योग बेहतर हो सकता था यदि हम गांव की ओर चले जाते। टू डू, उस ज्ञान को पाने के बाद आपके कहीं ना कहीं क्रिया में बदलाव आना चाहिए। इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर एक्शन। देन टू बी, it should be reflected in your ideas, in your overall personality, and most important to live together। देखिए, समाज में मैं इतना तो कहूंगी, मानव समाज ने विभिन्न प्रकार की क्रांतियां देखी हैं, विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव देखे हैं। यदि हम कोई सा भी फिलोसॉफिकल टेक्स्ट पढ़े हैं, यदि हम भगवत गीता देखें, यदि हम बाइबल देखें, सब में द वेरी आइडिया दैट दो दिन समान नहीं होते। जिस प्रकार से जब हम भगवत गीता, हमने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ा था फिलोसफी में, और वो आज भी मंत्र मुझे पूरा मैं दोहराती हूँ, निष्काम कर्म, कि आप कर्म करते जाइए,
अपनी ड्यूटी के प्रति प्रतिबद्धता रखिए और सब चीजें, सब दुविधा हट जाएगी। आज वही चीज दोबारा दोहराना है। संकट आता है, लेकिन बुरे समय का बुरा समय भी आता है। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इट्स आउट हियर। We have to integrate with it. We have to ensure that we know it, we do it, we put ourselves into it, and most important with the idea of living together. क्योंकि जरूरी है कि निंदक होना आसान है, लेकिन उस क्रिया में अपने आप को समाना मुश्किल होता है। सो बी अ डूअर. This is a new industrial revolution. It offers opportunities. It definitely offers challenges also. But you have the potential to write the best story of your life. इन्हीं आदर्श, इसी लास्ट आइडल के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगी। ये जो पीपीटी है, ये मैंने आप सब लोगों के लिए बनाई है। मैं ये आप सबके साथ आई डेफिनेटली शेयर इट ऑन व्हाट्सएप। बट स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री 4.0, इट्स दो इट मे बी अ न्यू एरिया, बट दिस इज एन एरिया दैट वी ऑल विल बी इंगेजिंग विद। जिस प्रकार से क्लॉस कोऑब ने और जिस प्रकार से शुभी ने भी ये बात रखी है कि दोहराई है, क्लॉस्कॉप का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन 4.0 एंड इंडस्ट्री 4.0 हैज जस्ट बिगन। अभी केवल शुरुआत है, एंड वी आर वास्टली अंडर प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो जो गलतियां पहले हुई कि कहीं ना कहीं बहुत सारी जनसंख्या इससे वंचित रही, हमें इसको ओवरकम करना है। आज बिल्कुल डिजिटाइजेशन का, डिजिटल पैराडाइम का विचार है, लेकिन जब तक, एंड ये बात मैं पूरे ईमानदारी के साथ कह सकती हूँ, चाहे कोई भी फोरम हो या कोई भी सेमिनार हो या लेख हो, जब तक ये इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, आई रिपीट, इक्विटी सबके लिए समान हो, एक्सेसिबिलिटी सबके पास, इसके पास अपने अंदर समाने की क्षमता हो, एंड सस्टेनेबिलिटी के साथ नहीं होगा, हम फिर वही गलती करेंगे कि ये चौथी औद्योगिक क्रांति बहुत भारी सवाल हमारी ह्यूमन एवोल्यूशन के सामने लेकर आ जाएगी। डिजिटल हैव्स एंड हैव्स नॉट। हम ऑलरेडी बहुत सारे, आप जैसे देख रहे हैं, पैंडेमिक ने वैश्विक शासन से लेकर राष्ट्रीय शासन से सवाल उठा दिए हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाना के हो, बैलेंसिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स। In this very important aspect of balancing lives and livelihood, health and economy, we cannot afford the digital divide. तो इससे हमें बचना है और यही प्रयास रहना चाहिए। तो वंस अगेन, आदरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर रमेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्पेक्टेड कुमार प्रशांत सर, धन्यवाद। डॉक्टर मनीष जी, धन्यवाद। डॉक्टर प्रमोद जी, टीआईसी, धन्यवाद। सभी साथी, जो युवा साथी हैं हमारे, शुभी, शुभम, प्रीति, बहुत प्रियंका, काफी आप लोगों ने कोऑर्डिनेट करा। आप सबको खूब सारी शुभकामनाएं व साधुवाद कि आप सब खूब खूब तरक्की करिए, खूब आगे बढ़ाइए, और देश में ही नहीं, पूरे विश्व स्तर पर श्यामलाल कॉलेज इवनिंग की जो छाप है उसको आप आगे चलते जाइए। बिकॉज रिमेंबर, यू आर द डूअर, यू आर द क्रिएटर। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, for this kind of enlightening session with us. Like, thank you so much. I'm very sure of the certain fact that all the audience have got all the audience have got various insight from your scholarly talk. Now it's time to take up some queries, and for taking up queries, I would like to call Mr. Harsh Pandey. Thank you, Ms. Suvi, and thank you so much, ma'am, for giving such an informative session. It was really a very insightful and very interesting talk. I'm sure that all the participants have learnt a lot from this. Ma'am, now we'll take queries from listeners. Ma'am, the listeners will ask their queries directly from you. We will start with Ms. Preeti. So, Ms. Preeti, here you can ask your query. So, unmute yourself and ask your query. Yes. Thank you so much, ma'am, for such an insightful talk. Ma'am, my question is that how the Industrial Revolution 4.0 will affect the future workforce? प्रीति, सारे क्वेश्चन इकट्ठे ले लें या कैसे No, ma'am, जैसे one आप by बताएं? one, one by one. वन बाय वन। प्रीति, आपने बिल्कुल सही कहा कि फ्यूचर वर्क फोर्स कैसे होगा। देखिए, आज एक नया विचार आ गया क्लाउड वर्कर्स का। पहले होता था व्हाइट कॉलर वर्क, ब्लू कॉलर, फिर व्हाइट कॉलर, फिर अब आ गया है क्लाउड वर्कर, कि किस प्रकार से आज एक इंटरनेट के, ईमेल के कनेक्टिविटी के थ्रू पूरा सिस्टम पूरा सिंक्रोनाइज्ड है। सो यस, फर्स्ट एट द लेवल ऑफ क्लाउड वर्कर। सेकेंडली, हाउ इट विल अफेक्ट वर्क फोर्स, दैट प्रीति, अब जो है, इट विल बी इजी टू पुट इन अकाउंटेबिलिटी कि कौन कहां पर वो है, बिकॉज एवरीथिंग इज डिजिटाइज, एवरीथिंग इज वेल रिकॉर्डेड। बट एट द सेम टाइम, दिस
entire this impact on humankind needs to be seen that it lacks the human concern. And today a lot of organizations, a lot of institutions are working that how do we add on the human element with respect to technology, because unless and until this human connect is not here, this human concern is not here, this industrial revolution will be just like a force that puts everyone on the digital aspect without actually ensuring that it works for the betterment or the advancement of humanity. Herein again I would always say that rationality of the humans to get the best out of technology would be the best way that it has a good impact on the workforce, because today workforce is already moving towards the digital realm, the cloud workers, there's so much accountability, there's so much digitization also. For example, today our identities are as per digital numbers, and but the need of the hour is that we should always ensure कि तकनीक मनुष्य के लिए है, मनुष्य तकनीक के लिए नहीं है. So Preeti, is that clear? Yes, I'm sure. Thank you. Next question. Thank you so much, ma'am. Now coming to the next query. Next query is from Mr. Dibyansu. So Mr. Dibyansu, if you are there, so unmute yourself and ask your query. I think Dibyansu has left. So ma'am, his question is, how will the current trends sometimes referred to as the Industrial Revolution 4.0 influences industrial relation in the present and future scenario? Very important question, Divyanshu, because today Industry 4.0, as we pointed out, that it is having an exponential impact. अब एक्सपोनेंशियल इम्पैक्ट का ये अर्थ हो जाता है कि फॉर एग्जांपल यदि एक XYZ कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट निकाला, व्हाट इज द गारंटी कि विभिन्न एक घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर एक नई चीज ना आए. सो द नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इनोवेटिव, द नीड टू बी consistent with respect to approach are two important aspects where industry 4.0 is impacting all the organizations. आज हमें इनोवेशन को एक की रूप से मानना है, आज हमें इनोवेशन को एक नए मंत्रा के रूप में अपना लेना है. एंड उसके साथ साथ आज सभी इंस्टीट्यूशंस के सामने एक जरूरी जो पैमाना आ गया है कि इनोवेशन को अब कंसिस्टेंट रखना है, निरंतर, कहीं ना कहीं रुकना नहीं है. सेम अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस. फॉर एग्जाम्पल यदि आज हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, किसी एडिटर को हम एक लेख भेजते हैं, तो वो हमसे सवाल पूछता है व्हाट इज द न्यू थिंग. फॉर एग्जाम्पल यदि कल को आप लोग PhD के लिए आगे जाएं या फिर आप जैसे अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है तो कहा जा रहा है 4th ईयर में स्टूडेंट्स के पास रिसर्च का विकल्प होगा, आप डिसर्टेशन लिख सकते हैं. तो सबसे पहला सवाल जो आपसे इंटरव्यू बोर्ड से पूछा जाएगा शुभम, वो ये होगा कि क्या आप तैयार, व्हाट इज द न्यू थिंग. आप कॉलोनियलिज्म पढ़ना चाह रहे हैं, बट व्हाट इज द न्यू थिंग इन कॉलोनियलिज्म दैट जो आपका रिसर्च ऑफर करता है, जो अन्य रिसर्च नहीं ऑफर करता. सो द नीड टू बी इनोवेटिव एंड कॉन्स्टेंटली बी एट इट, कंसिस्टेंसी is the very important, the two important things where industrial revolution really hammers it out. And यहाँ पर ये औद्योगिक क्रांति हम तक पहुंच जाती है, because see ultimately कुछ भी मंत्रा हो, इंस्टीट्यूशंस को, टेक्नोलॉजी को व्यक्ति ही तो चला रहा है ना, इंटरनेट को, गूगल मीट को आप ही तो ऑन कर रहे हैं ना. बट यस, यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली इनोवेटिव. आप ब्लॉगर हैं, उदाहरण यश हर शरी में आपको एक उदाहरण दो, आप ब्लॉगर हैं और आप काफी अच्छा सोशल मीडिया पर चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं. आपके कंटेंट को व्यूअरशिप कैसे मिलेगी? जब आप कुछ नया ऑफर करो, समथिंग दैट रियली गेट्स the imagination of people. So this is where I guess both public, private as well as individuals face a common challenge of Industry 4.0. Let's be innovative and let's be consistent. Harsh, ठीक था? So Harsh, now it's over. Yes, continue with other proceedings. Yes, sir. Thank you. I think that all the queries of listeners have been solved. So thank you so much, ma'am, for solving the queries of our listener. As limitation of time, we will move ahead. And so now over to Miss Suvi. Thank you. Thank you so much, ma'am, for solving the queries of our enthusiastic listeners. And thank you for telling the benefits of Industry 4.0. In future also, we would be looking forward for these kind of illuminating intellectual session with you. Thank you so much, ma'am. We were really grateful. We were really grateful to have an intellectual asset like you in our event. With this, time has come
to end this session. And now I would like to invite Dr. Manish Kanwar, sir, to finally conclude this session and to present vote of thanks. Sir is a constant source of motivation, guidance, inspiration. Sir, kindly come and give the concluding remarks. Okay, thank you, Subi, for inviting me. This is only one stage where I'm speaking. First of all, Dr. Mirza, it's a privilege to hear you at a length in this Dijina. It has always been a preference to pay attention to your words. And also, thank you, Ms. Subi and Mr. Hers, and you both are a marked moderator. So let's start with some ideas that propounded by Dr. Amna. So she started with Gandhian thought, then she moves through the timeline, the first 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 revolutions, and she spoke about the globalization and obvious the needs of the hour, employment scale, and metaverse. So if I summarize whole the ideas which were propounded by Dr. Amna, so I can say she talked about AI, artificial intelligence. She talked about horizontal and vertical integration. She talked about the cloud computing, which is most important. And she also talked about AR, that means metaverse. She introduced us with the metaverse, and I also very much fond about these things, because when Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan is not around us, who gives their touch, their idea? So this is the artificial intelligence and metaverses. So this is the most important, and always induce to my students that go and do some these kind of ideas. As a political sciences student, as a history student, you need to learn something. And she talked about the digital twins and cyber security. Also, and lastly, she end with her ideas with equality, accessibility, and sustainability. And in between so many things, she has incorporated, and such a wonderful, wonderful idea. But as a convener, I have some little point, which this is not added one point. This is my thought only, and this is something is negative and something is positive about this. So thankfully, this pandemic a challenge in this industrial sector that has greatly worked in favor of outcoming the long prevailing digital phobia. जो हमारे अंदर एक digital phobia था, उसको इस pandemic ने at least दूर किया. This is the most wonderful thing about this इंडस्ट्रियल 4.0 रेवोल्यूशन, जो हमारे अंदर एक फोबिया था उसको दूर किया. एंड ऑब्वियस इन द हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर दिस काइंड ऑफ आइडियाज वी प्रोपोगेटेड एंड सक्सेसफुली लॉन्च्ड. सो ये एक है. बट इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी है, और वो है हाउ वी डील विद द ट्रस्ट डेफिसिट, because these all ideas gives a trust deficit. And if we look into the second industrial revolution, and I'm talking about the first 1650 and second is 1750, enlightenment, what we call enlightenment in those days. So some romantic historians, I mean to say romantic, that means they are notion with the nature, and one of the wonderful thinker, that was the Rousseau, and he definitely argued that the development of art and science had resulted in the social and moral degeneration of man, division of labor, differentiation of functions and applications of technologies had, in his views, corrupted men and destroy their ideas. So we think about all these things also. How we deal with the trust deficit. And finally, I want to say to my students, see a very interesting movie, Anukul, a very short movie that depicts the digital era combination. So again, thank you very much, Dr. Amna, for these kind of words and these kind of insightful and thought-provoking ideas. And it is my honor
to offer a vote of thanks at this forum on behalf of Department of History, IQAC, I, Dr. Manish Karmawar, express my gratitude to all present here. We are grateful, Dr. Amna, for her valuable time and comprehensive insight we thankful to all participants also for tuning in and sharing their not questions, queries with us. I take this occasion to thank our principal sir, Dr. Ramesh Kumar, IQC convener Dr. Kumar Prasant, and also the president of Sakshi, Mr. Subham Tiwari, for all administrative supports. I acknowledge all the faculty members who have graced this occasion. Most importantly, I thank all the student participants who have been core strength of entire session. Finally, I'm grateful to History Society, Sakshi, GSTS, Graduate Scholar Talk Series, and the JCC, Journal of Continuity and Change, and their students representative, and those who are working on that forum. And definitely forward to more this kind of interaction. I am very much sure and give this assurance that we are going to interact more intellectual ideas through the intellectual learners and the teachers from this university, from the other university also. And thank you. With Saint Jill of our audience, team members and speaker, do come with all these kind of ideas and give us strength to fulfill your wishes, and also strengthening our educational collaboration with the digital world. Thank you very much, Dr. Amna, for coming, and all of